Good morning, everybody. Welcome to Lossico's Daily News Analysis. Today is 12 June 2020, and the topics that we'll be covering for today are the Gandhis, Mandelas, and Kings of Today. इस आर्टिकल में ऑथर गोपाल कृष्ण गांधी है एंड ही टॉक्स अबाउट how these heroes of the past, Gandhi, Mandela, Martin Luther King, ये जो हीरोज हैं हमारे पास्ट के, ये आज की सिचुएशन में किस तरह से उसे डील करते हैं. Then the second article for today is a case of quiet diplomacy. Here we will discuss a little bit about India-China standoff that has been going on for the past few days, and ये quiet diplomacy की हम बात करेंगे इसमें. Then the third article for today is Ministry of Truth. Here we will discuss the recent media policies that have been passed by Jammu and Kashmir administration, and we will discuss the pros and cons of it. So the first article, relevance of Gandhi, Mandela and Martin Luther King today. तो यह आर्टिकल गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखा है एंड देन ही बेसिकली ट्राइज टू से कि ये जो लोग हैं महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, वी सेलिब्रेट देम every year, we celebrate their anniversaries, but what we actually need to do is we need to think with them. हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये लोग अगर आज के ज़माने में जिंदा होते, then how would they have seen the world that we exist in today? And how would have they dealt with the world that we exist in today? So, for example, he says that Gandhi ji ने fight किया था इंडिया के independence के लिए, and today India is an independent country. Martin Luther King ने US में slavery के against fight किया था. Now United States में अब Civil Rights Act है जिसके अंदर slavery is a punishable offense. Then नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड और सेग्रीगेशन की जो पॉलिसी थी उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, काफी लड़ाई करी थी. एंड नाउ साउथ अफ्रीका इज अ सेग्रीगेशन फ्री कंट्री. देयर आर लॉज अगेंस्ट इट देयर. तो द थिंग्स दैट दोज पीपल फॉट फॉर इन देयर टाइम्स वो अब नहीं है, एंड दे आर द विनर्स इन दैट सिनेरियो. बट वी एज अ पॉपुलेशन, हमें तो यह सीखने की जरूरत है कि हाउ वुड दे हैव डेल्ट विद द सिचुएशन टुडे एंड वुड दे हैव बीन कंटेंट. क्या वो satisfy होते the way that we are functioning today. तो आगे चलते हुए ऑथर ने, राइटर ने जो है हमारे, इन्होंने कोविड-19 के सिचुएशन को कंपेयर किया है विद द फैक्ट दैट ह्यूमन बीइंग्स एंड द सिविलाइजेशन जो ह्यूमन बीइंग्स ने क्रिएट करी है वो ह्यूमन लाइफ को कितना कॉस्ट कर रही है. तो वो बोलते हैं कि कोविड-19 तो डेंजरस है ही, द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग, एवरी कंट्री इज सफरिंग from this miniature virus. Lekin there's one more thing that is common amongst everybody, and that is the virus of civilization. हम सब civilization के पीछे and commercial profit making के पीछे we all are running so blindly that जो human life का cost आ रहा है उसके वजह से we are ignoring that. And this way the writer compares COVID-19 and civilization. And going further, he compares COVID and with the situation that happened in Hiroshima and Nagasaki in 1945. So bombing हुई थी, US bombed Hiroshima and Nagasaki, the cities in Japan, 1945 में, and they were nuclear bombs. There was widespread damage that was caused. तो author बोलता है कि COVID-19 में और ये जो bombing थी 1945 में, there's not much difference there. रिजल्ट उसका सेम ही था. इन बोथ द केसेस इनोसेंट पीपल जिनका कोई ब्लेम नहीं होता है, दे डाइड इन अ लार्ज नंबर. एंड we tend to say that nature is taking its revenge. You must have heard that people say that हमने nature को इतना utilize कर लिया है, अब nature revenge ले रही है, which is why we all are suffering. But the author यहाँ पे ये बोलते हैं कि नेचर रिवेंज नहीं ले रही है, रादर नेचर इज इमिटेटिंग ह्यूमन बीइंग्स. तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमने ऐसा नेचर डेवलप कर लिया है इन आवर अर्ज फॉर सिविलाइजेशन दैट वी एंड अप डिस्ट्रॉइंग द थिंग्स दैट वी शुड प्रिजर्व. और इसी तरह से नेचर भी एक्ट कर रही है. नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए ह्यूमन लाइफ, बट इट इज ऑल्सो इमिटेटिंग ह्यूमन बीइंग्स and it is also destroying the things that it should preserve. The author takes example of George Floyd here.
यूएस में अभी प्रोटेस्ट हुए थे एंड एक ही किसी प्रोटेस्ट में पुलिस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो हो रहा था वहाँ पे जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी विच हाईलाइटेड रेसिज्म इन यूएस एंड उसके अगेंस्ट फिर से प्रोटेस्ट होने लगे तो ये भी ऑथर ने ये इंस्टेंस यूज किया है एंड देन ही सेज कि ये जो इंस्टेंस है रेसिज्म इन यूएस का इट हाईलाइट्स कि जो क्राइसिस हम एक्चुअली फेस कर रहे हैं it is a human crisis. COVID is a crisis which is biological, but in today's time, we are also facing a huge human crisis. Coming to India, he compares COVID situation with Mahatma Gandhi's situation. So 1893 में गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहे थे he boarded a train जहाँ से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था because he was not because the train was specifically reserved for white population white people तो वहाँ से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था एक ही सेग्रीगेशन का ही पार्ट था ये रूल जिसके अंदर गांधी जी को ट्रेन में बैठने नहीं दिया गया था 1893 के उस इंस्टेंस में तो राइटर गांधी जी के साथ हुई उस इंस्टेंस को कंपेयर करता है इंडिया में आज क्या हो रहा है उससे तो वी ऑल हैव सीन द माइग्रेंट क्राइसिस लॉकडाउन सडनली अनाउंस हो गया द कंपैरेटिवली जो बेटर ऑफ पॉपुलेशन थी दे गॉट सेटल्ड इन देयर ओन हाउसेस जिनके पास घर था वो अपने घर में बैठ गए दे स्टार्टेड डूइंग देयर ओन रेस्पेक्टिव थिंग्स बट जिसके अल्टीमेट सफरर्स थे दे वर द माइग्रेंट्स जो माइग्रेंट पॉपुलेशन काम की खोज में दूसरे स्टेट्स में जाते हैं दे वर द अल्टीमेट सफरर्स ऑफ दिस लॉकडाउन एंड दे हैड टू उनके पास तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था वापस आने का तो उन्हें वॉक करके आना पड़ा उन्हें ट्रेन्स नहीं मिली वापस आने के लिए क्योंकि सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था वॉक करते हुए दे वर कमिंग बैक a few that we have heard stories जहाँ पे कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है for example this 12-year-old girl called Jamlo Matkam walked for 60 kilometers अपने घर वापस आने के लिए and then she died on the way so this is the example of human crisis that we are facing in today's times it's not just covid ये crisis काफी हद तक जो consequences है covid के they are human made एंड जरूरत है कि हमें इससे डील करने का इफेक्टिव प्लान बनाए एंड हम सोचे कि ये जो हमारे हीरोज हैं जिनको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं उन्होंने इस टाइप के ह्यूमन क्राइसिस को किस तरह से डील किया होगा तो एंड में आके जो राइटर है ही टॉक्स अबाउट अ डॉक्टर इन वुहान तो ये वुहान से ओरिजिनेट हुआ था कोविड वी ऑल नो दैट वहाँ पे एक डॉक्टर थे ली वेंगलियांग करके उन्होंने सबसे पहले इस वायरस की खबर रिवील करी थी पब्लिक में और जब उन्होंने इस वायरस की खबर रिवील करी थी पीपल वर नॉट ट्रस्टिंग हिम ट्रस्ट नहीं कर रहे थे एंड गवर्नमेंट जो वहाँ की थी स्पेशली द गवर्नमेंट वाज नॉट सपोर्टिंग हिम बिकॉज गवर्नमेंट का ये कहना था कि आप ये न्यूज बाहर फैला के सोशल ऑर्डर को डिसरप्ट कर रहे हो लेटर ऑन इन डॉक्टर को भी कोविड हो गया एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ इट अनफॉर्चुनेटली हालांकि अब जब क्राइसिस इतना बढ़ गया है नाउ व्हेन वी लुक एट व्हाट ही डिड ही एक्टेड हीरोइकली क्योंकि इन्होंने सबसे पहले यह न्यूज बाहर फैलाने की कोशिश करी एंड द ऑथर सेज दैट दिस इज द एलिमेंट ऑफ होप दैट वी आर ऑल लुकिंग फॉर दैट गवर्नमेंट आपको अपोज कर रही है लेकिन आप यू नो व्हाट इज करेक्ट एंड यू नो दैट द न्यूज नीड्स टू गो आउट so you acted towards taking that action and the author says that this is the element of hope that we are all looking towards and similarly जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ की वजह से वो भी एक एलिमेंट ऑफ होप है और ये सारी चीजें हमें ये सिखाती है कि जो हमारे 3 हीरोज हैं महात्मा गांधी नेल्सन मंडेला मार्टिन लूथर किंग इनको सिर्फ सेलिब्रेट करने के बजाय वी नीड टू एक्ट लाइक देम ये इन्होंने कैसे आज के जमाने में एक्ट किया होता उस तरह से हमें एक्ट करना है एंड लिस बेंगलियांग जो डॉक्टर थे वुहान का ही हैज बीन एन एग्जांपल ऑफ इट और अब जो जॉर्ज फ्लॉयड के अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स हैं जो सड़कों पर उतर के एक्चुअली प्रोटेस्ट कर रहे हैं दे आर एन एग्जांपल ऑफ हाउ आवर हीरोज वुड हैव एक्टेड
coming to our second article for today. जो हमारा सेकेंड आर्टिकल है, इट टॉक्स अबाउट इंडिया चाइना डिप्लोमेसी. टेक्निकली तो इन्होंने दे टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड क्वाइट डिप्लोमेसी, पर उसके पहले थोड़ा सा इस स्टैंड ऑफ के बारे में. तो हमने इस स्टैंड ऑफ के बारे में पहले अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, लेकिन ब्रीफली मैं समराइज करना चाहूंगी. तो बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, जो जम्मू कश्मीर के एरिया में इंडिया चाइना की टेरिटरी को डिवाइड करती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पे मल्टीपल पॉइंट्स पे काफी दिनों से स्टैंड ऑफ चल रहा है दोनों देशों के बीच में. तो चाइनीज ट्रूप्स जो है बॉर्डर से अंदर घुस आई हैं एंड अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है. क्योंकि स्टैंड ऑफ की खबर बाहर आ चुकी है, दोनों देशों की जो सरकारें हैं उनके लेवल पे भी डिस्कशन चल रहा है ऑन हाउ टू डील विद दिस. तो एक पॉइंट नहीं है स्टैंड ऑफ का, देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स अलोंग द बॉर्डर. एंड जो अभी तक बातचीत हुई है उसके हिसाब से 4 से 5 जो पॉइंट्स हैं वहां पे तो सिचुएशन रिजॉल्व हो गई है, फाइनल डिसाइड हो गया है कि कैसे डील करेंगे. बट देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल पैंगोंग लेक है लद्दाख से, अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे वहां पे वहां का स्टैंड ऑफ रिजॉल्व नहीं हुआ है. सिमिलरली गलवान वैली है, वहां का भी स्टैंड ऑफ अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है. सो इधर की साइड में सिचुएशन थोड़ी अनसर्टेन है. Now the author here specifically talks about quiet diplomacy. तो ये बोलते हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स होना दो देशों के बीच में, बॉर्डर कंट्रीज के बीच में, ये काफी कॉमन चीज है. इंडिया हैज हैड बॉर्डर डिस्प्यूट्स पास्ट इन द पास्ट विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज, विद आवर नेबरिंग कंट्रीज. पर अभी जो हम कर रहे हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाइट डिप्लोमेसी. तो वी हैव सीन कि जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, जो मीडिया है, ये काफी गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं ऑन हाउ गवर्नमेंट इज साइलेंट, गवर्नमेंट इज नॉट डीलिंग विद द क्राइसिस, ये जो बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ हो रहा है इफेक्टिवली. लेकिन एक्चुअली जो गवर्नमेंट कर रही है, व्हाट द गवर्नमेंट इज एक्चुअली डूइंग, इट इज इन्वॉल्विंग इन समथिंग कॉल्ड क्वाइट डिप्लोमेसी. अब क्वाइट डिप्लोमेसी में क्या होता है कि मिलिट्री का जो पोस्चर है बॉर्डर्स पे, उसे स्ट्रॉन्ग रखा जाता है, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं रखा जाता कि एडवर्सरी को बाहर निकलने का चांस ना मिले. इसका पर्पस यही है कि जो सिचुएशन है वो इतनी सीरियस ना हो जाए कि कोई फाइट वॉर के चांसेस हो, बट एट द सेम टाइम वी डोंट हैव टू शो दैट वी आर वीक. तो हमें अपना पोस्चर स्ट्रॉन्ग रखना है, लेकिन हमें दूसरे को चांस देना है कि वो वापस चले जाए, वो रिटेलिएट कर ले. सो दिस इज क्वाइट डिप्लोमेसी. एंड द ऑथर टॉक्स अबाउट इंस्टेंसेस जब इंडिया ने पहले भी क्वाइट डिप्लोमेसी पर रिलाई किया है. फॉर एग्जांपल इन 2013 अगेन चाइना और इंडिया के बीच में LAC पर स्टैंड ऑफ हो गया था. यूपीए गवर्नमेंट थी उस टाइम पे रोल में, एंड उस टाइम पे भी गवर्नमेंट को पब्लिकली अटैक कर रही थी ऑपोजिशन एंड मीडिया, बट गवर्नमेंट ने साइलेंटली एट द बैक हैंड वो रिजॉल्व करना चाह रहे थे डिस्प्यूट, एंड देयर टॉक्स वर गोइंग ऑन बिटवीन द टू कंट्रीज. And it eventually got resolved by using the tactic of quiet diplomacy. Again in 2014 standoff हुआ था चुमार के एरिया में, इंडिया में, between India and China. उस टाइम पे भी 2500 सोल्जर्स थे जो डिप्लॉय कर दिए गए थे बॉर्डर पे, एंड इवेंचुअली क्वाइट डिप्लोमेसी का टैक्टिक यूज करके चाइनीज आर्मी विड्रू एंड वो पीछे हो गए थे, एंड द सिचुएशन गॉट रिजॉल्व. देन अगेन इन 2017 अगेन देयर वाज अ स्टैंड ऑफ. सो दिस यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ. 72 डेज का स्टैंड ऑफ था, काफी लंबे दिनों तक चला था डोकलाम में, इंडिया चाइना बॉर्डर पे. एंड यहाँ पे क्या हुआ था कि चाइना वाज बिल्डिंग अ रोड इन भूटान, एंड बिकॉज इंडिया एंड भूटान का उस टाइम पे कोई अग्रीमेंट चल रहा था, सो इंडिया वाज अगेंस्ट इट, एंड इंडिया प्रोटेस्टेड सेइंग कि भूटान में ये हमारा अग्रीमेंट पहले से है, चाइना कैन नॉट बिल्ड स्टार्ट बिल्डिंग अ रोड देयर. So again a standoff happened between India and China, and eventually it got resolved by using quiet diplomacy. और इसका हमें एग्जाम्पल ये देखना चाहिए कि बाद में we got to know कि जब स्टैंड ऑफ हुआ था, बात चल रही थी गवर्नमेंट के लेवल पे, बट इंडिया withdrew first and after that China also withdrew. So again withdrawing first was an example of quiet diplomacy कि वॉर का चांसेस ना बढ़े, लेकिन सिचुएशन भी रिजॉल्व हो जाए.
तो यही बोलते हैं ऑथर, बेसिक पॉइंट उनका यही है कि ऑपोजिशन एंड मीडिया का तो काम ही है दैट इट्स देयर जेन्युइन रोल दैट दे शुड क्वेश्चन द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन एट द गवर्नमेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट देयर रोल इज दैट उनको मीडिया और ऑपोजिशन को एडिक्वेटली इन्फॉर्म रखना चाहिए, पर वो बट एक बैलेंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, सो दैट एवरी लिटिल इंट्रिकेसी जो चल रही है बॉर्डर डिस्प्यूट पे वो रिवील ना हो, बट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन रहे जो मीडिया और ऑपोजिशन पार्टीज है उनके पास, and then the issue can be resolved using this tactic of diplomacy. The last article for today is new media policy for Jammu and Kashmir. तो इस आर्टिकल का एक्चुअल जो टाइटल है इट्स कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ. अब अगर आपने ये नॉवेल पढ़ी हो जिसका नाम है 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, सो उसमें इस टाइप के मिनिस्ट्रीज यूज जैसे टाइटल यूज होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ स्पेसिफिकली एक टाइटल है जो 1984 नॉवेल से आया है बाय जॉर्ज ऑरवेल, एंड उससे थोड़ा सा कंपैरिजन किया जा रहा है इस आर्टिकल में भी 1984 से. तो जो बिग ब्रदर का जो पूरा आइडिया है एक डिस्टोपियन फिक्शन का, वो इस नॉवेल से ही आया है. एंड here the author tries to critically analyze this media policy in Jammu and Kashmir by comparing it little bit with 1984. बट हम उस बुक की बात नहीं करेंगे अभी, यहाँ पे हम खाली इस मीडिया पॉलिसी की बात करेंगे बिकॉज only this would be relevant from the exams point of view. तो यहाँ पे हुआ क्या कि जून 2 को जम्मू एंड कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने न्यू मीडिया पॉलिसी रिलीज करी. अब इस मीडिया पॉलिसी में दिस इज लॉन्ग डॉक्यूमेंट विच टॉक्स अबाउट कि फेक न्यूज क्या होगा, अनएथिकल न्यूज रिपोर्टिंग क्या होगी, एंटी सोशल न्यूज किसे कह सकते हैं, एंड देन उन्होंने ये भी ले डाउन किया हुआ है कि कंडीशंस क्या होगी न्यूज पेपर्स के एम्पैनलमेंट के लिए. So a lot of detailed mechanism has been given जो न्यूज जो ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, उनको काफी इफेक्ट करेगा एंड काफी हद तक कर्टेल भी कर सकता है, बिकॉज नाउ a lot of things are in the hand of government and officials जो पहले नहीं थी उनके हाथ में. तो जो राइटर है वो इस पूरी पॉलिसी का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं एंड वो ये बोल रहे हैं कि नाउ एक्चुअली में हो क्या रहा है, इस पॉलिसी के आने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो सरकार है जम्मू की कश्मीर की, वो एक्चुअली में चाहती क्या है कि किस तरह की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उन रीजन में प्रिवेल करे. वो ऐसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चाहती है जहाँ पे जर्नलिस्ट गवर्नमेंट को और ब्यूरोक्रेट्स को और ऑफिसर्स हैं उनको आंसरेबल हो, जर्नलिस्टिक एथिक्स है एंड जो भी इश्यूज आते हैं वो एक मिडिल चेन से होके पास करें आउटर पब्लिक में, और वो मिडिल चेन गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कंसिस्टेंट होगी. तो गवर्नमेंट का जो एम है while passing this policy, as we can see, is to create a positive image of the government and to build public trust, because ultimately क्या होगा कि ये सारे रेगुलेशंस लाने से जो भी न्यूज फाइनली पब्लिश होगी वो गवर्नमेंट के एजेंसी से होके जाएगी, वो बेटिंग होगा काफी हद तक, एंड इसके जरिए जो नेगेटिव इमेज बनाई जाती है गवर्नमेंट की उसे काफी हद तक रोका जा सकता है. लेकिन ऑथर का कहना भी उनके जगह पे सही है, बिकॉज मीडिया जो है उसको हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और वो इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पोर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. लेकिन अगर मीडिया की इंडिपेंडेंस ही कर्टेल कर दी जाएगी तो फिर वो फोर्थ पिलर का जो रोल होता है दैट द मीडिया विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म. तो ये डाइकोटमी है एंड विच इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू एनालाइज दिस न्यू मीडिया पॉलिसी. तो देन ऑथर लुक्स एट दिस मीडिया पॉलिसी इन द लार्जर कंटेक्स्ट. तो जम्मू कश्मीर का जो पिछले एक साल से वहाँ पे जो चल रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में ऑथर ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड देन ही सेज दैट जम्मू एंड कश्मीर में the government claims that everybody is being provided equal treatment, all states are being provided equal treatment, पर एक्चुअली में हम जम्मू कश्मीर में जो देख रहे हैं वो
गवर्नेंस कम है लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज्यादा है। तो आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन एक कंट्री का जब बोला जाता है तो हम बोलते हैं कि देयर शुड बी लेस गवर्नमेंट बट मोर गवर्नेंस, बट हियर इट इज ऑपोजिट। यहाँ पे मोर गवर्नमेंट है और लेस गवर्नेंस है। अब पिछले साल से ही हमने देख लिया है, जब से स्पेशल स्टेटस रिमूव हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का, काफी चीजें हुई हैं। इंटरनेट बंद हो गया था, अभी रिस्टोर हुआ है रिसेंटली, बट इट इज नॉट बीन रिस्टोर्ड पूरे एक्सटेंट तक। पॉलिटिकल लीडर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, दे वर हाउस अरेस्टेड, सम ऑफ देम आर स्टिल अंडर हाउस अरेस्ट। जो न्यू मीडिया पॉलिसीज के ऊपर अगेन एक हिट है ऑन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। ऑल दीज बैक टू बैक एक्शंस in the region, एक trust deficit create हो रहा है in the people of the region, and which is ultimately brewing a crisis which we should all be worried of. And ultimately, the author again talks about a free media that we need everywhere, including Jammu and Kashmir. Because free media is the pillar of democracy, and it helps the government in taking effective decisions. जब तक मीडिया फ्री नहीं होगा, तब तक कंट्री का और गवर्नमेंट का इफेक्टिव वर्क करना और उस पर फ्रीली इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस रेज करना उसकी पॉपुलेशन का, सिटीजन्स का डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इसीलिए ये मीडिया पॉलिसी क्वेश्चन में आई है और इसको एनालाइज करना, क्रिटिकली एनालाइज करना काफी जरूरी है। So these were all the articles for today. The question is, who amongst the following is known for fighting against apartheid in South Africa? Martin Luther King, Nelson Mandela, Rosa Parks, or Nina Simone? Take your time and answer. Thank you.